الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. صدق اللہ۔ ان الساعت، بے شک قیامت، لآتیت، لا ریب فی، ضرور آئے گی، یقین آئے گی، لا ریب جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، ولیکن اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگوں میں سے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ وقال ربکم، اور آپ کے رب نے، تمہارے رب نے فرمایا، ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، عن عبادتی، میری عبادت سے، سیدخلون، تو یہ ضرور وہ ان قریب وہ داخل کیے جائیں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، ذلیل ہو کر وہ داخل ہوں گے۔ اللہ الذی، اور اللہ ہی ہے جس نے، جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، جس نے بنائے رات کو تمہارے لیے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار، اور دن، مبصرا، روشن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور بے شک اللہ لذو، یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ، انسانوں میں سے اکثر، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، اور یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق کل شے، جس نے پیدا کی ہر چیز کو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود مگر وہی، فانا تؤفکون، پس تم کدھر بہکائے جاتے ہو۔ کذالک، اور اسی طرح، یوفک الذین، بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ، کانوا بآیات اللہ، جو ہم اللہ کی آیات کے مقابلے، اللہ کی آیات کے لیے، یا جادور کے مقابلے جھگڑا کرتے رہتے تھے، یعنی ہمیں قانون کا مطلب مستقل پر ہمیشہ ہمیشہ جھگڑا کرتے رہتے تھے۔ اللہ الذی، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، جعل لکم الارض قرارا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرارا، رہنے کی جگہ، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت، وصورکم واحسن صورکم، اور اس نے بنائی تمہاری صورتیں، فاحسن صورکم، اور کیسی اچھی صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات، اور رزق دیا اس نے تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ رزق۔ ذالکم اللہ، اور یہی ہے تمہارا رب، فتبارک اللہ، پس بابرکت اللہ، رب العالمین، سب جہانوں کا رب۔
तुम जैसे पढ़ते हैं पीछे अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के बारे में, पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल दिए हैं कि क़यामत ज़रूर आकर रहेगी, क्योंकि उसमें दलील दी। और अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला समझो कि कसम खा कि यहाँ पे इन्ना, इन्ना का मतलब ये होता है बेशक, और फिर आयात ला जो लाम भी आ गया, ये दो, ये तो लाम ताकीदी, यानी दो चीज़ें आ जाएं तो इसलिए अहले अरब के नज़दीक होता है कि ये कसम के बराबर है, इसमें क़ुव्वत जो होती है ना कसम के बराबर है। तो ये पिछले आयत में पढ़ा है, क़यामत के हक़ में दलील अल्लाह तबारक को जिक्र फरमाई। अब कायनात के खालिक व मालिक ने कसम खाकर फरमा दी कि क़यामत आने वाली है। तो अल्लाह तबारक कसम खाना खुद ही तो बहुत बड़ी दलील है, और सबसे बड़ी दलील है कि अल्लाह तबारक व ताला जो हर चीज़ का मालिक है, क़यामत का मालिक, वो कह रहा है कि क़यामत यकीनन यकीनन आएगी, हर हाल में आएगी। मगर उसके बावजूद अक्सर लोग उस पर ईमान नहीं लाते, यानी कि अक्सर लोग इतनी वाज़ेह और सच्ची बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको मानने के बाद वो जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो फिर चलेगी नहीं। क्योंकि जब इंसान मानेगा कि आखिरत भी आने वाली है और क़यामत आएगी, तो उसको ये भी होगा फिर उस दिन मुझे हिसाब भी देना होगा, तो फिर अपने उसको ये बातें छोड़नी पड़ेंगी। यहाँ जो बातें कर रहा है उनका हिसाब किस तरह देगा, तो वो इस बात को मानने को ही तैयार है कि क़यामत में कोई आएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, क्या मैं लोगों से अल्लाह तआला कहा कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और फिर अल्लाह ताला ये भी फरमा दे, इन्ना लजीन यस्तकबिरून अन इबादती, जो बे वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, वो ज़रूर जहन्नुम में अनकरीब जलील होकर दाखिल होंगे। तो यहाँ आखिरत की याद दहानी के साथ अल्लाह ताला ने तौहीद की भी ताकीद फरमा दी है। असल में जो ये यही एक तौहीद वाला है मसला, काफिरों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान झगड़ा सबसे बड़ी थी यही कि सबसे बड़ा कि एक इलाह है, कि बहुत से माबूद हैं। असल झगड़ा तो यही था। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला कि मुझसे मुझे पुकारो, यानी मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा और मुझसे बदगुमान ना हो। अल्लाह तुम्हारे यहाँ असल में हुक्म दे रहा है कि मैं तुम्हें जो हर लम्हे की किसी भी शिरकत के बगैर तुम्हारी परवरिश कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें हर चीज़ दे रहा है, तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है। तुम उसी को पुकारो, तो मुझे पुकारो, मैं मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँ, मैं तुम्हें दूंगा। और मुझसे बदगुमान हो या किसी और को पुकारते हो मांगते फिरते हो, तो फिर ये समझ लो कि वो ये समझ गए कि वो तुम्हें कुछ देगा या तुम्हारी दरख्वास्त मेरे दरबार में मंजूर करा देगा, ऐसा है नहीं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ इस बात को दुआएं कबूल करने, और अल्लाह तबारक ये फरमाया सारे अख्तियारात मेरे पास हैं, दस्ता जुमला अख्तियारात हैं ही मेरे पास। लिहाजा दूसरों से कितनी दुआएं तो मांगो मुझसे, और मगर बल्कि दूसरों से ना मांगो, मुझसे मांगो। तो इस आयत को समझने के लिए कुछ बातें हमारे जहन में पूरी तरह अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात है कि इंसान उसी ज़ात से, उसी हस्ती से मांगता है जिसको वो समझता है कि वो हर बात का सुनने वाला भी है, हर बात हर चीज़ को देखने वाला भी है, और उसी के पास सारा इक़्तिदार, फ़ौक़ुल फ़ितरी इक़्तिदार उसी के पास है। और दुआ मांगने का हर एक भी इंसान का यही अंदरूनी एहसास होता है कि मेरे जो आलम इसबाब के तहत जो मैं काम नहीं कर सकता, वो कोई ऐसी हस्ती होगी जो मेरा ये काम करेगी। यानी उस हस्ती को फिर आदमी बेदेखे पुकारता है, हर वक्त पुकारता है, हर जगह पुकारता है, हर हाल में पुकारता है। अकेले में भी पुकारता है, बावाज़ बुलंद भी पुकारता है, चुपके चुपके भी पुकारता है, बल्कि दिल ही दिल में फिर उससे मदद के लिए दरख्वास्त करता रहता है। तो ये सब कुछ लाजमन उस अकीदे की बुनियाद पर होता है कि वो हस्ती उसको हर हाल में देख रही है, उसके दिल की बात भी वो सुन रही है, और उसी ऐसी कुदरत कुल्ली आप कहें कुदरत की हासिल है कि उसे पुकारने वाला जहाँ भी हो वो उसकी मदद को पहुंच सकती है और उसकी बिगड़ी बना सकती है। जो भी दुआ उससे की जाएगी, अल्लाह तबारक व ताला उसको ज़रूर वो सुनता भी है और वो उसकी पूरी भी करेगा। ये जब इंसान की बात समझ में आ जाए तो आपकी फिर ये मुश्किल नहीं होती कि जो शख्स भी अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती को मदद के लिए पुकारता है, वो दर हकीकत कतई और खालिस और सरी शिर्क का इर्तिकाब करता है, खुला शिरक कर रहा है। क्योंकि वो उस हस्ती के अंदर ही इन सिफात का एतकाद रखता है, वो ये समझता है कि वो भी मुझे देख रही है, वो मेरी बात सुन रही है, वो मुझे मेरी आवाज़ को सुन रही है, और उसके बाद अख्तियारात भी हैं। यानी वो समझता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है वो उन हस्तियों में भी हैं, तो उसको वो अल्लाह के हिसाब से वो शिरक कर रहा है। तो ये खुला शिरक है जिसमें कोई शक ही नहीं है, कोई इसमें कोई दूसरी शक वाली बात ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये इंसान को समझ आनी चाहिए कि कादिर मुतलिक और कायनात का मुतब्बिर और समी और बसीर हस्ती सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, और वही कुल्ली अख्तियारात का मालिक है।
دوسری کوئی بھی ہستی اس پوری کائنات میں ایسی جو دعائیں سننے کی اور اس کی قبولیت عدم قبولیت کو اختیار رکھتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چاہے نبی ہو، چاہے کوئی اولیاء اللہ ہو، کوئی فرشتہ ہو، جن ہو، یا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ایسا کوئی اختیارات میں اللہ کے ساتھ شریک ہے ہی نہیں، اور کوئی اختیارات میں سمجھتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ وہ تو، کیونکہ اصل میں تو مالک رہے گا، بے اختیار بندے بندے ہی رہیں گے، کوئی سمجھے تو سمجھتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی بھی اگر عقل سے کام لے تو یہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں سے دعا مانگنا بالکل ایسا ہی ہے، جس کی ایک مثال ہے، جیسے ایک انسان ایک اپلیکیشن لے کے اور کسی بڑے دربار میں جائے جہاں پہ سمجھیں کہ وہاں پہ ایگزیکٹو افسر بیٹھا ہو، سب کچھ جس کے ہاتھ میں وہی کرنے والا سارا اختیار اس کے پاس ہو، وہ اس کو چھوڑ کے اور دوسرے جو لوگ آئے ہوئے ہیں سائلین ہیں وہ بھی اس کی درخواست لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے وہ درخواست اپنی کسی ایک کے آگے اپنی درخواست پیش کر دے، اور پھر ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگ جائے کہ حضور سب کچھ تو آپ ہی ہیں، آپ ہی کا یہاں حکم چلتا ہے، اور میری مراد آپ ہی بتلائیں گے، سب کچھ ہوگا آپ ہی کرنے والے ہیں۔ اور یہ حرکت اول تو بجائے خود ہی سخت حماقت اور جہالت کی نشانی ہے، لیکن ایسی حالت میں تو پھر یہ انتہائی گستاخی بھی بن جاتی ہے جب اصل حاکم جس کو سارا اختیار ہے وہ سامنے موجود ہو، اور عین اس کی موجودگی میں اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے درخواستیں التجائیں پیش کی جائیں، پھر یہ جہالت اپنے اس کمال کو سمجھ لے، پھر اور بھی کمال کو پہنچ جاتی ہے، تو وہ شخص جس کے سامنے درخواست پیش کی جا رہی ہے وہ بار بار خود یہ سمجھائے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود سائل ہوں، میں تو خود درخواست لے کے بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس تو کوئی اختیارات نہیں، مگر جو درخواست لے کے وہ کہہ رہا نہیں، سب کچھ کرنے والے ہی آپ ہیں، بگڑی بنانے والے ہی آپ ہیں، سارے ہمارے کام تو کرنے والے ہی داتا بھی آپ ہیں، گنج بھی آپ ہیں، اور غریب نواز بھی آپ ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سمجھ لو کہ وہ کتنا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گستاخی پہ کتنا غصہ بھی آتا ہوگا۔ تو یہ انسان کو جب بعد میں سمجھ آ جائے تو پھر ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ سمجھو کہ جو اللہ تبارک سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ مجھے پکارو، تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا میں ہوں، اسے قبول کرنے والا میرا کام ہے، استجیب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور پھر اللہ تو یہ صاف ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخل، یہاں پر نماز یہ ہے کہ یہ جو تکبر کرتے ہیں عن عبادتی، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں ایک میں جگہ دعا اور دوسرے کا پہلے میں دعا کیا، اور یہاں پہ عبادت کا لفظ ہے، یہ دو لفظ ہیں جن کا مطلب دعا ہی ہے، کہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا عین عبادت اور جان عبادت، یعنی دعا جو کی جاتی ہے وہ عبادت ہی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضۂ بندگی ہے، اور اس سے منہ موڑنے کے معنی ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے اپنے خالق اور مالک کے آگے اعتراف عبودیت کرنے سے کتراتا ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، تو اگر آپ ان سے دعا مانگتے ہیں تو جس ہستی سے آپ دعا مانگ رہے ہیں سمجھو آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و صاحب فرما دیا ہے کہ وہ جو میری دعا مانگو، اور یہ جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا نہیں کرتے، یعنی میری عبادت نہیں کرتے، وہ پھر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یہاں صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یہ دلیل بنا دیا ہے کہ یہ دعا ہی عبادت اور پکارنا ہی بندگی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اسے مانگتا ہے، اسے فریاد کرتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، اور جو مافوق الاسباب اشیاء کے لیے اس کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، چاہے وہ کہتا ہو کہ جی یا علی مدد یا غوث اعظم مدد، تو وہ سمجھے وہ انہیں پکارتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، کوئی مانے نہ مانے، مگر اصل میں عبادت ان کی جا رہی ہے، کیونکہ اصل تو دعا ہی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے، پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ دوسرے آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ مغز ہے عبادت کی، عبادت کا اصل مغز ہی دعا ہے۔ تو یہاں دعا کا فرمایا کہ دعا انسان کو ہر حال میں کرنی چاہیے، یعنی کہ کیونکہ آپ سلمان فارسی کہتے ہیں، آپ سلمان نے فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتے مگر دعا، یعنی اللہ کے فیصلے کو بدل دینے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، مگر اللہ خود اپنا فیصلہ بدل سکتا ہے، اور اس وقت تک ہوتا ہے جب بندہ اسے دعا مانگتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سے دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو انسان کو وہی چیز دے دیتا ہے جس سے اس نے دعا کی تھی، یا اسی درجے کی کوئی اور بلا اس پر آنے سے روک دیتا ہے، بشرطے وہ کسی گناہ یا کسی خطا رحمی کی دعا نہ کرے۔ ادھر سید ابو سعید خدری اور سے آپ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان جب بھی دعا کرتا ہے
تو बशर्ते वो किसी गुनाह ख़ता रहमी की दुआ ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तीन सूरतों में से किसी एक सूरत में कबूल फरमाता है। या तो उसकी वो दुआ उस दुनिया में कबूल कर ली जाती है और उसे, या फिर उसे आखिरत में अजर देने के लिए महफूज कर लिया जाता है, या उसी दुआ की वजह से उसी दर्जा की किसी आफत को उसके आने से रोक दिया जाता है। तो दुआ इंसान को अल्लाह तबारक हर हाल में दुआ करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, अल्लाह से दुआ मांगो इस यकीन के साथ को कबूल फरमाएगा। आपको यकीन होना चाहिए, शक नहीं होना, या उसमें कोई ये कि या अल्लाह तू चाहे तो कर ले, तू चाहे तो, अल्लाह से यकीन के साथ दुआ मांगो, फिर जब से यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला दुआ कबूल करेगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह की निगाह में दुआ से बढ़कर कोई चीज़ भी वक़्त नहीं है, यानी अल्लाह बहुत बड़ी वक़्त है दुआ की। इस तरह अल्लाह तो या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि अल्लाह उसे पसंद फरमाता है कि उससे मांगा जाए। कि अल्लाह ही है जो एक ऐसी ज़ात है जो उससे मांगा ना मांगे तो बहुत गुस्सा करता है। इंसान का ये हालत है कि इंसान से अगर कोई मांगे तो इंसान गुस्सा करता है। तो ये अल्लाह ही है, अगर ना मांगे तो नाराज़ अल्लाह है। इससे अल्लाह तबारक व तआला दुआ करते रहना चाहिए। दुआ जैसे बहरहाल है ही नफ़ा बख्श है, उसमें या तो उन बलाओं के मामले में भी जो नाजिल हो चुकी हैं और उनके मामले में जो भी नाजिल नहीं हुई। तो कहा गया असल ने ये फरमाया कि अल्लाह के बंदो तुम ज़रूर दुआ मांगा करो। इसी तरह आप सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला बयान करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम में से हर शख्स को अपनी हर हाजत अल्लाह से मांगनी चाहिए। उसकी जूती का तस्मा भी टूट जाए। और तदबीर से पहले दुआ के मानिए कि बंदा हर वक्त अपनी आजजी और अल्लाह तबारक व तआला की बालादस्ती का एतराफ़ कर रहा है, यानी कहता है कि मैं तो आजिज़ हूँ और अल्लाह तबारक व तआला ये जो कुछ देने वाला है। तो इसका मतलब अभी हमें ये कि पता चल गया कि इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के हर हाल में उससे दुआ करते हो, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगेंगे तो समझो कि आपने उसकी इबादत की हो, जिससे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत कर दी तो वो तो जहन्नुम में, अल्लाह ताला खुद ही फरमा दिया कि वो जहन्नुम में दाखिल किया, और वो भी जलील होकर वहाँ से करीब जहन्नुम में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर हाल में शिरक से बचाए, बिदात से बचाए, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि किस हालत में शिरक हो जाए, अनजाने में भी। तो दुआ करते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुझे शिरक से बचाए, जो मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता उसे अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ़ फरमा दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला और मिसालें दे रहे हैं अपनी वहदानियत की कि अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीह, कि अल्लाह तबारक व तआला ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ भी तौहीद की तौर पर ही दलील पेश कर रहा तो दिन को, क्योंकि उसका बाकायदगी से आना ये मानी रखता है कि ज़मीन और सूरज एक ही अल्लाह की हुकूमत है, ये उन दोनों पे एक ही हुकूमत चल रही है। और उनके ऊपर फिर कर इंसान और दूसरी मखलूक़ात है जो ज़मीन पर रहती हैं, उनके लिए नफ़ा बख्श होना इस बात की सरी दलील है कि वही एक अल्लाह है जो सब अशिया का खालिक भी है। और उसने निज़ाम में बिल्कुल कमाल दर्जा की हिकमत के साथ इस तरह बनाया है कि उसकी पैदा करदा मखलूक़ात को इससे फ़ायदा हो। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह के जो इसमें जो ना मानने वाले उनको भी, और या जो अल्लाह के साथ शरीक दूसरों को ठहराने वाले उनको भी एहसास दिलाया कि अल्लाह ने रात और दिन की शक्ल में कितनी बड़ी रहमत उनको अता की है। और कितने सख्त नाशुक्र हैं कि इस नेमत से फायदा आते हुए शब और रोज़ से गद्दारी कर रहे हैं, या नेमत के फ़ायदे उठा रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने और शुक्र अदा किसी और का कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला लदू फ़ज़लिन अला अन्नास, अल्लाह तबारक व तआला तो बहुत फजल फरमाने वाला है लोगों पर, मगर अक्सर लोग ना शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह अक्सर लोग जो है हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कम ही है करते हैं, कि अल्लाह तबारक व तआला दिन और रात और साबित किया है कि वही तुम्हारा मालिक है, वही हर चीज़ का खालिक है। और ये उलट फेर तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अजीम उसमें फ़ायदे भी हैं। तो इससे साबित हुआ है कि वो तुम्हारा निहायत मेहरबान परवरदिगार है। उसके बाद ला महला खुद ब खुद ये बात साबित हो जाती है कि तुम्हारा माबूद हकीकी भी वही है, अल्लाह ही है जो असल में तो माबूद है। माबूद हकी इलाह वाहिद, तो माबूद तो वही है। तो ये बात तो सरासर अकल और इंसाफ के खिलाफ है कि खालिक और परवरदिगार तो कोई और हो और माबूद कोई किसी और को वो दूसरा बन जाए। तो ये तो नाशुक्रापन है। तो ये इसी से अल्लाह तबारक व तआला मना कर रहे हैं, और यही करेंगे ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी, ये है। तुम
हमारा असल में रब खालिक है, ज़मीन आसमान को अल्लाह ताला बनाने वाला है, सूरज चांद को अल्लाह तबारक व ताला बनाने वाला है, और तुम्हें खुद को भी अल्लाह ने ही बनाया। तो फिर यह साफ अल्लाह इला इल्लल्लाह, उसके सिवा तो कोई माबूद है ही नहीं। हर चीज़ का पैदा करने वाला वो है, तो फिर माबूद भी वही है। फन्ना तू फिर तुम फिर आए कहाँ से जा रहे हो? यानी कौन तुमको ये, तुम्हें कौन ये उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है कि जो खालिक और जो खालिक है ना परवरदिगार, वो तुम्हारी बात के मुस्तहिक कैसे हो गए? तो तुम्हें कोई उल्टी पट्टी पढ़ा, तुम कहाँ से फिर आया जा? सवाल करने के सवाल समझने के सवाल ही किए कि अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का अकेला इबादत का मुस्तहिक और पुकारने के लायक होने दलाइल की रोशनी में वाज़ेह है, तो फिर कौन सा वो मुकाम है जहाँ से किसी ने तुम्हें इस बात से फेर कर किसी और के पीछे लगा दिया? कज़ालिक युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यज़दिलून, मगर ये लोग, वजह उसकी ये है कि ये वो लोग हैं जो फिर आपके को इनकार करते रहे। यानी जो आप रसूल निशानियां लेके आए उनको मानने को तैयार नहीं। जो रसूल के जब निशानियों को नहीं मानेंगे, यानी अल्लाह की आयत का इनकार करेंगे, तो फिर वो फिर लाजत है कि फिर किसी और के पीछे चलेंगे, तो वो फिर वही उसी तरह वो बहकाए जाते हैं। और यहाँ पे अल्लाह तबारा ये भी था, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द क़रारा, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बना दिया करार की जगह, रहने की जगह, वस्समा, और आसमान को बना दिया छत, और तुम्हारी सूरत बनाई तो तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी सूरतें बनाई, तुम्हें किस शक्ल में पैदा किया। इससे अच्छी शक्ल कितने इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छी किसी भी मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह नहीं बनाया। हर किसी को देख लेंगे उसका चेहरा नीचे की तरफ ही होता है, एक इंसान ऐसा है जिसका चेहरा उसके सामने की तरफ, उसका मुंह खाने की जगह मुंह भी है वो भी। और हम जो है वो इंसान को अल्लाह ताला ने बनाया जो सीधा खड़ा होता है, सीधा खड़ा और झुकता उसी वक्त है जब अल्लाह के सामने झुकना होता है। और जो आप देखें कितना अल्लाह तबारक और किस शक्ल में इंसान को बनाया है, कितना तवाज़ुन और तनासुब से अल्लाह तबारक ने उसको बना दिया। और फिर अगर ये कि इंसान अगर फिर भी ना माने, उसके समझ में ना आए कि कितनी उसको अच्छी शक्ल दी है, और फिर भी अगर वो अल्लाह की किब्रियाई ना बयान कर, उसका शुक्र अदा ना करे, तो फिर तो उसको क्या कहा जाता है कि और फिर अल्लाह तबारक व तआला राज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तय्यिबात यानी पाकीज़ा चीज़ों तुम्हें खाने के लिए दी। यानी पाकिस्तान खाने से मुराद ये कि कितने जायकेदार चीज़ें, जिस चीज़ को भी खाओगे कितना जायकेदार चीज़ अल्लाह तबारक ने बनाई हमारे लिए। जो भी हम खाते हैं जायकेदार ही खाते हैं। और फिर वो कुछ नहीं होता तो आप देखें फल फ्रूट जितने भी बने हुए हैं कि अल्लाह तबारक कितने बनाए हैं, जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने पाकीज़ा चीज़ों को बनाए हैं। और फिर वो रिस्क जो दिया है वो हमारे लिए दिया है, हमारी खुराक भी बनता है, हमारी ताकत भी बनता है, और फिर हमें हमारे लिए वो लज्जत भी मुहैया करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ही है जिसने बनाए। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बु, ये है तुम्हारा अल्लाह जो तुम्हारा हम तुम्हारी हर वक्त परवरिश कर रहा है। हमें सांस की, आप देखें सांस हमें हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, हर चीज़ सूरज की रोशनी दे रहा है, चीज़ दे रहा है, वो तुम्हारा रब है, पालने वाला है। व तबारकल्लाहु रब्बुल, और वही बाबरकत है अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का मालिक वही है, अल्लाह तबारक व ताला ही है रब्बुल आलमीन, सब जहानों का मालिक अल्लाह ही है। तो वही काबिल तारीफ, और हर चीज़ की तारीफ उसी के लिए, सब कुछ उसी का है। उसी से मांगो और उसी से यकीन रखो कि वो तुम्हें देगा। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी सही राह दिखाए, हमें सही समझ अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमें उस रास्ते पे चलाया जो अम्बिया कराम का रास्ता था, जो सालहीन का रास्ता था, जो सहाबा कराम का रास्ता था, उसी पे हमें गामजन रखे, और बिदात से, शिरक से इनसे बचाए, बुरी आदत से बचाए हमारे। अल्लाह तबारक व ताला माहौल जो हमारा आजकल बिगड़ गया, अल्लाह तबारक व ताला हमें उससे महफूज रखे। अल्लाह तबारक व ताला हम सब पर आमी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।